Next phylum is Annelida. Annelida name comes from the word annule. Annule means little ring-like structure. So if you will see the organism belongs to Annelida, you will see their body is properly segmented, and they their body form, if you will observe that, you will see small ring-like structures are present. That's why the name comes Annelida. Okay, now if you will see the proper metamerism for the first time in the animal kingdom. In the organism belongs to Annelida. Okay, so true segmentation and metamerism. True segmentation means external as well as internal segmentation. That is very important point. True segmentation, that means the segmentation present from the embryonic stage. And there are three phylums where you can see these true segmentation metamerism, that is in Annelida. First time appears in the Annelida phylum, and the second phylum is which contain metamerism, which show metamerism, that is Orthopoda and Chordata. We are comes under the category of Chordata, and हमारी body में भी segmentation होता है from embryonic stage, that is the internal segmentation. Okay, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू एनिलिडा, इनकी बॉडी एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल दोनों सेगमेंटेशन प्रॉपरली, एक सेगमेंट जो होते हैं ये आपस में जॉइंट होते हैं. ओके, सो ट्रू सेगमेंटेशन फर्स्ट टाइम अपीयर इन एनिलिडा किंगडम. नेक्स्ट थिंग, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ट्रू सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म जो है किन फाइलम्स में आपको देखने को मिलेगा. दैट इज़ एनिलिडा, ऑर्थोपोडा एंड कॉर्डेटा. Okay, and each segments are termed as metamere or annule. Now phylum Annelida is divided into three phylum: class Polychaeta, Oligochaeta, Hirudinaria. The member of Polychaeta is Nereis. Member of Oligochaeta is earthworm. Hirudinaria, the member is Hirudinaria. Okay, leech, you can say the common name is leech. हैबिटेट. नाउ अब तक आपने जितने भी फाइलम्स मैंने आपको बताए, द फर्स्ट फाइलम दैट इज़ पोरीफेरा, दैट इज़ प्योरली एक्वाटिक, फ्रेश वाटर और मरीन वाटर. नेक्स्ट निडेरिया, देन टीनोफोरा एंड एस्केलमेंथीज. द मेंबर ऑफ एस्केलमेंथीज फाइलम आर बेसिकली द पैरासाइट. ओके, दे प्रेजेंट इन आवर स्टमक, in our intestine. Basically they causes the disease filariasis, ascariasis. एंड बट अब तक आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि दोज आर स्ट्रिक्टली टेरिस्ट्रियल. नाउ द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू Annelida phylum. They are terrestrial as well as they are aquatic, that marine as well as freshwater. So terrestrial annelid, best example is your earthworm. You can see uh, friend of farmer. Earthworm is considered as friend of farmer. And second, freshwater annelid, that is Hirudinaria or leech. And marine water annelid is your Nereis. सो ये अकॉर्डिंग टू NCERT के एग्जाम्पल है, अकॉर्डिंग टू नीट आई एम टीचिंग यू. दैट्स वाई आप स्ट्रिक्टली फॉलो NCERT फॉर नीट, और इतना काफ़ी है. नेक्स्ट, बेसिक फीचर. बेसिक फीचर इफ़ यू विल सी, ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन, level of organization, organ system is there, body plan. Now the body plan is tube within tube, that means mouth as well as anus. Both, there are two openings, mouth as well as anus. Now the coelom, first time in animal kingdom you will see a true coelom, because Aschelminthes में आपको pseudocoelom देखने को मिलेगा. And what is coelom? This is the cavity between body wall and alimentary canal. That cavity is termed as coelom, and your body wall should be aligned with mesoderm, as well as your alimentary canal should be lined with the help of mesoderm. Then only such cavities are termed as coelomic cavity. And the first time in the animal kingdom coelom appears in annelids. Okay, next, and eucoelom is of two types. In that it is of sizocoelom. Okay, that I have explained in the previous videos. And symmetry, that is bilateral symmetry. And now let's see the example of Nereis. If you will see the Nereis, you will see their body is segmented, each segment, that's why they show the members of annelids show
true segmentation, metamerism. Okay, so two pair of eyes are present. Dear student, let's see, जहाँ पे आई का फॉर्मेशन हो जाता है, बॉडी इज ऑलवेज बायलेटरल, बॉडी विल ऑलवेज शो बायलेटरल सिमेट्री, बिकॉज सिर्फ एक ही एक्सेस होगा जिससे आप इसको कट कर सकते हो, बिकॉज टू आईज आर प्रेजेंट, तो आपको कट करने के लिए सिर्फ एक ही एक्सेस होगा. एंड इफ यू विल सी सम structures are present, these are termed as palp, and in the each segment you will see there is a leg like structure which is termed as parapodium. It is very important from need point of view. These parapodium helps in swimming. Okay, for their movement they help in their swimming. They are dioecious plant, male and female are separate. आपको मैंने बताया है कि द लास्ट फाइलम दैट इज एस्केलमेंथीज, जहाँ एस्केरिस में आपको सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिला था फर्स्ट टाइम इन एनिमल किंगडम. यू हैव ऑब्जर्व द सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म दैट इज इन एस्केलमेंथीज, एंड यहाँ पे भी आपको सेक्शुअल डाइमॉर्फिज्म देखने को मिलेगा. एंड there are some exception, but mostly they are dioecious, present in intertidal regions, and with those which are marine, वो आपको intertidal regions में देखने को मिलेगा. respiration, यहाँ पे भी respiration के लिए कोई proper organ develop नहीं हुआ था, so body surface से होता है, which is termed as cutaneous respiration, and they are basically carnivores, predators, and they are having a specific teeth like structure which is made up of chitin. reproduction, रिप्रोडक्शन यहाँ पे अब आपको स्पेसिफिक देखने को मिलेगा ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन. इनमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट हैव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बट जब इनमें ब्रीडिंग सीजन आता है दे डेवलप देयर सेक्शुअल ऑर्गन्स. नाउ नेक्स्ट, this is the structure of Nereis during their breeding season. Okay, so during their breeding season you will see heteroneris. heteroneris क्यों बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे आपको जो है देखो, ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन व्हाट हैपन, यहाँ पे इनका जो बॉडी का नैरो पार्ट होता है, यहाँ पे इनका टेस्टिस का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ओके, एंड स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है. दिस पोर्शन इज टर्म्ड एज एपिटोक. इट हैपन्स ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन. ये टेस्टिस का फॉर्मेशन थ्रू आउट इनके लाइफ साइकिल में नहीं होता, ड्यूरिंग ओनली देयर ब्रीडिंग सीजन देयर सेक्शुअल ऑर्गन डेवलप्स. सो दैट पार्ट वेयर द सेक्शुअल ऑर्गन डेवलप्स, इट इज टर्म्ड एज एपिटोक, एंड द पार्ट वेयर सेक्शुअल ऑर्गन इज नॉट डेवलप्ड, सच पार्ट इज टर्म्ड एज atoke. Okay, so epitoke, atoke, so two types of body you can see. This is termed as heteroneris. Okay, so that structure you will only see in their breeding structure, their breeding season, sorry. And earthworm is hermaphrodite. Hermaphrodite means sexual. Now I have just explained you in the last para that they are dioecious, means male and female body are separate, but there are some exception in annelid which are monoecious, means male and female organs are present in the same body, they are hermaphrodite. So earthworm is a member of annelid and they are hermaphrodite, means male and female sexual organ present in the same organism. And if you will see generally they show external fertilization. External fertilization means what happened actually, if you will see in case of Nereis में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन दे डेवलप टेस्टिस, एंड इस टेस्टिस में आपको बेसिकली स्पर्म फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. देयर इज अनदर बॉडी जहाँ पे आपको ओवरी का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, जहाँ पे एग का फॉर्मेशन होता है, एंड आफ्टर दैट इनकी बॉडी जो होती है वो बर्स्ट हो जाती है टू रिलीज मेल एंड फीमेल गैमेट, सो इन वाटर. सो बेसिकली दे आर जस्ट, आई हैव एक्सप्लेन यू दैट नेरिस इज एक्वाटिक नीलिड. यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था मरीन वाटर में प्रेजेंट होता है नेरिस. सो इनमें जो फर्टिलाइजेशन का मोड है बड़ा डिफरेंट होता है. यहाँ पे फर्स्टली आपको देखने को मिला कि ड्यूरिंग देयर ब्रीडिंग सीजन दे डेवलप देयर सेक्शुअल ऑर्गन एंड रेस्ट ऑफ द टाइम देयर सेक्शुअल ऑर्गन इज एब्सेंट. तो यहाँ पे सेक्शुअल ऑर्गन जो है वो डेवलप होता है ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन, और फिर इनकी जो बॉडी होती है वो बर्स्ट हो जाती है टू रिलीज आउट देयर गैमेट्स. सो यहाँ पे
adult body form is sacrificed during the formation of you can say during at the time of sexual reproduction, and they releases their gamete in the water, and water में fertilization हो रहा है, that means outside the body. So when the fertilization takes place outside the female body, it is termed as external fertilization. And in some species of Nereis you will see internal fertilization. There is also an exception, and because look, in Nereis always external fertilization takes place, but in case of leech, okay, in case of leech you will see cross fertilization takes place, means male and female gamete developed in different means fusion takes place in different organisms, and in that case you will see internal fertilizations. Okay, and in earthworm you will see this is a one structure earthworm, and this is another earthworm. Okay, so they are hermaphrodite, male and female sexual organ present in the same body, and cross fertilization takes place, means male gamete form in different body and female gamete in different body, they fuse together to form the zygote. And here you will see the external fertilization takes place in a specific chamber. This is termed as cocoon. Okay, here the your external fertilization takes place, and here you will see the direct development. There is no formation of larva, because अभी लास्ट में हमने जितने भी फाइलम कंप्लीट किए इसमें आपने देखा है, बिकॉज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है जहाँ पे आपको जाइगोट से लार्वा फॉर्मेशन देखने को मिलता है, देन देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ एडल्ट. बट यहाँ पे अर्थवर्म में अब आपको फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा कि कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है, डायरेक्टली जाइगोट से आपका अर्थवर्म जो है एडल्ट अर्थवर्म का डेवलपमेंट होता है. ना दिस इज इम्पॉर्टेंट, एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया. ओके, एक्सक्रीटरी और देयर रिप्रोडक्टिव रोल, एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है एंड रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है. अभी मैंने आपको बताया था कि मोस्टली एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन प्रीवियस फाइलम्स, बट एस्केलेमेंथीज में फर्स्ट टाइम आपने देखा कि एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन डेवलप हुआ था, दैट इज़ योर प्रोटोनेफ्रीडिया. ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. और ऑर्गन सिस्टम का अपीयरेंस जो है वो फर्स्ट टाइम जो आपने देखा था कि एस्केलेमेंथीज में हुआ, और ऑर्गन का डेवलपमेंट प्लेटीहेलमिन्थीज में हुआ था. नेक्स्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इन सम ऑर्गन अर्थवर्म में जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज़ डायरेक्ट. एंड बट इनके मोस्ट जो मेंबर्स होते हैं उनमें आपको लार्वा का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा. सो द डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, दैट मीन्स देर इज़ अ फॉर्मेशन ऑफ लार्वा. बॉडी मूवमेंट, बॉडी मूवमेंट के लिए नेरस के स्ट्रक्चर को जब मैंने आपको बताया था, there is a specific structure which is help them for swimming, because Nereis is strictly aquatic animal. So parapodium is present, and some of the members जो होते हैं उनमें body muscles भी help करते हैं. Now see, these are the parapodia. अभी मैंने आपको बताया, if you will see the if in each annule you will see some outgrowth like structure, these are termed as your parapodia. Okay, Nereis is a predator and parapodia help them to swim in the water. Now seta, what is seta? These are S-shaped chitinous structures. uh, Earthworm are detrivorous. Okay, which mean they helps in the movement. And if you will see their structure, some longitudinal as well as some circular muscle cells are present. Longitudinal muscles are present inner side and circular muscle present आउटर साइड. ओके, ये ध्यान रखना आप, सर्कुलर मसल बाहर की तरफ से होते हैं और लॉन्गिट्यूडनल मसल अंदर की तरफ से होते हैं. ओके, यू कैन इमेजिन दिस एज अ हेयर पिन, उसके ऊपर आप रबर बैंड लगा दो तो लाइक दिस आप समझ सकते हो कि अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होगा. यहाँ से नीट का क्वेश्चन बनता है, ये आप ध्यान रखना, अंदर की तरफ लॉन्गिट्यूडनल होगा और ऊपर से जो है सर्कुलर मसल इसको कवर अप करते हैं. एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ईच बॉडी सेगमेंट में जो है आपको सीलिया का बंच देखने को मिलेगा. दीज स्ट्रक्चर्स आर टर्म्ड एज सीटा. एस शेप्ड काइटेनियस स्ट्रक्चर होता है, ऊपर से हार्ड कवरिंग होती है शेल की. एंड
इट हेल्प सीटा हेल्प दम इन द मूवमेंट। नेरिस में क्या था, पैरापोडिया प्रेजेंट था, और अर्थवर्म में क्या प्रेजेंट होता है, सीटा प्रेजेंट होता है, जो इनके मूवमेंट में हेल्प करता है, एंड बॉडी मसल। सो इफ़ यू विल सी, नेरिस में क्या प्रेजेंट होता है, पैरापोडिया होता है, बट इनके पास सकर्स नहीं होता, इनके पास भी सीटा होता है एंड बॉडी मसल होता है। सो नेरिस के पास तीन चीज़ें होती है मूवमेंट के लिए, पैरापोडिया, बॉडी मसल्स एंड सीटा। अर्थवर्म के पास पैरापोडिया नहीं होता है, ना तो सकर होता है, इनके पास सीटा होता है एंड बॉडी मसल होता है मूवमेंट के लिए। एंड जो लीच, जोंक जिसको आप बोल सकते हो इन कॉमन लैंग्वेज, इनके पास भी पैरापोडिया प्रेजेंट नहीं होता, बट इनके पास सकर होता है एंड दे डोंट हैव सीटा, इनके पास सीटा भी नहीं होता। सो सकर एंड बॉडी मसल, बॉडी मसल आपको सब में देखने को मिलेगा, नेरिस में, अर्थवर्म में, लीच में, बट parapodia is a specific feature of nereis, seta is a specific feature of earthworm, and sucker is a specific feature of leech। देखो earthworm जो जो लीच होते हैं, जोंक जो होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि हमारी बॉडी में चिपक जाता है, तो वहाँ पे वो सकर के थ्रू अटैच होता है, और फिर जैसे समर सॉल्ट करते हुए ये मूव करता है, जैसे नॉर्मली इस तरीके से मूव करके रोटेट करके फिर यहाँ पे अटैक करेगा, फिर यहाँ से अपनी बॉडी को ऊपर उठा के फिर इधर अटैक करेगा। तो इस तरीके से अटैकिंग इनका पोजीशन होता है, एंड जो सकर होता है सम हाउ इनका सकर इनको मूव करने में हेल्प करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इनके लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स का डेवलपमेंट आपको देखने को मिल रहा है। एनीलिड्स में पैरापोडिया दैट इज प्रेजेंट इन नीरस, अर्थवर्म में जो प्रेजेंट होता है दैट इज सीटा, एंड लीच में सकर्स, और बॉडी मसल सब में कॉमन होते हैं। इफ यू विल सी लीच, दिस इज टर्म्ड एज सैंग्विवोरस, बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंग्विवोरस मीन्स विच फीड ऑन ब्लड, ये हमारे ब्लड को सक करते हैं, सो दे आर टर्म्ड एज सैंग्विवोरस। इनके पास 2 सकर्स होते हैं एंड टू एंड दे आर टर्म्ड एज एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट मीन्स बॉडी के बाहर रह के उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं। Now, the digestive system is tube within tube, because true alimentary canal is present, mouth and anus both are present. Respiration is cutaneous, that means body surface से होता है, such type of respiration is termed as cutaneous respiration. Circulatory system जो है very important, very important for NEET, first time appear in animal kingdom, that is in kingdom Annelida, that is a closed circulatory system। जब मैं आपको कॉकरोच जब मैं आपको अर्थवर्म के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, वहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगी, बिकॉज ये जो अर्थवर्म है ये सेपरेट आपके एक चैप्टर में मेंशन है क्लास 11th में, तो वहाँ पे मैं उस चीज़ को कवर अप करूँगी। एंड इन द एनिमल किंगडम आपको सिर्फ इतना पढ़ना है कि फर्स्ट टाइम सर्कुलेटरी सिस्टम किस फाइलम में अपेयर हुआ है, दैट इज फाइलम एनिलिडा। Earthworm is having 4 heart, okay, and their blood is red in color, because red color क्यों होता है, our blood is also red in color because of the presence of hemoglobin pigment, तो इनका भी blood जो होता है वो red color का होता है because of the presence of phycoerythrin and hemoglobin, okay, which is dissolved in plasma. एक्सक्रीशन के लिए अब यहाँ पे देखो, जब मैंने आपको बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीज में फर्स्ट टाइम ऑर्गन आया एक्सक्रीशन के लिए, दैट इज़ फ्लेम सेल्स। फिर आपने इसके बाद देखा जो लास्ट हमारा फाइनल था दैट इज़ एस्केलेमेंथीज। एस्केलेमेंथीज में आपने क्या देखा था, एस्केलेमेंथीज के पास प्रोटोनेफ्रीडिया स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो, आई विल शो यू। एच शेप रेनेट सेल या फिर इनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है, ओके, एच शेप रेनेट सेल दैट इज इन एस्केलेमेंथीज। सो एक्सक्रीशन के लिए ऑर्गन किस में आ गया था, दैट इज इन प्लेटीहेल्मिन्थीज, दैट इज प्लेटीहेल्मिन्थीज। उसके बाद फिर आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे अब नेक्स्ट जो है आपको इनके पास फ्लेम सेल्स देखने को मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एस्केलेमेंथीज में आपके रेनेट सेल्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। नाउ इन दिस फाइलम फॉर एक्सक्रीशन यू विल सी नेफ्रीडियम, ये इनके ऑस्मो रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। नर्वस सिस्टम जो होता है इनका गैंग्लियोनेटेड होता है, एंड इनका एग्जाम्पल है नेरिस, लीच। लीच का साइंटिफिक नेम हिरुडिनेरिया है, एंड योर अर्थवर्म scientific name is Ferrithema posthuma, always remember that. So this is all about your kingdom or kingdom Annelida, that is sufficient for NEET. And if you want to follow any book you can follow Campbell book, and next phylum which I will discuss with you all, that is Arthropoda and Mollusca.